ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਨਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਲੋਗ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੀ ਨਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਨੋਟ। ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਨੋਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏ, ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈੱਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੋਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡ। ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ -NF ਈ ਨੋਟ ਦੇ। ਈ ਨੋਟ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਇਹ +1 ਦੀ ਰਿਡੋਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਨੋਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਐਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਈ ਨੋਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਈ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏ। ਈ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ, ਈ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਓਵਰਆਲ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਈ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸੈੱਲ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਈ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਈ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਓਵਰਆਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅਗਰ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਐਨੋਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੈਥੋਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਨੋਡ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੈਥੋਡ ਦੀ। ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੀ ਵਰਡ ਦੋਵੇਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਨੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਥੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੋਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਨੋਡ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਕੈਥੋਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ? ਕੈਥੋਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਲੋਨ। ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਅਲੋਨ। ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਨੋਡ ਹੈਗਾ, ਐਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਹੈਗਾ, ਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ। ਐਨੋਡ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਐਨੋਡ। ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਐਨੋਡ। ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਓ, ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ +1 'ਚ ਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਐਨੋਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖੋ, ਐਨੋਡ ਲੈਫਟ। ਐਨੋਡ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੈਥੋਡ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨੋਡ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ? ਕੈਥੋਡ ਕਹਿਣਾ। ਐਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ।
तो कैथोड वाले पासे की होंदी पई है रिडक्शन होंदी पई है। थोड़ा याद करना है, ठीक है। नैक्सट आप प्रोसीड करते हैं ई नोड ते। हुण आप ई नोड किद्दां फाइंड करना है। ई नोड जो आप डेल्टा जी का फॉर्मूला लिखिया ही की लिखिया ही -NF ई नोड सैल। हुण ई नोड सैल फाइंड किद्दां करना पुत्र, इसदा फॉर्मूला हुंदा है ई कैथोड प्लस ई एनोड, ई कैथोड प्लस ई एनोड। हजे तुहानूं चीज़ नहीं समझ लगती बई, जो आप न्यूमैरिकल सोल्व करांगे तो अपने आप ही यह चीज़ क्लीयर होएगी। न्यूमैरिकल तो ही देखते सा, देखो सब तो पहले सानूं एक वैल्यू गिवन है 2Ag पॉजिटिव कैडनीयम तो की बनता पाया सिल्वर, तो सिल्वर तो की बनता पाया नाल की बनता पाया कैडनीयम 2 पॉजिटिव। हुण अगर इस रिएक्शन को ध्यान नाल वेखो Ag पॉजिटिव CD2Ag CD2 पॉजिटिव। अगर इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान नाल तुसीं वेखो, सिल्वर की होंदी पई इत्थे ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, देखो पॉजिटिव चार्ज की करता पाया डिक्रीज करता पाया, इस करके दी की होंदी पई है पुत्र रिडक्शन होंदी पई है। अगर आप इस केस की गल करिए इत्थे पॉजिटिव चार्ज की करता पाया इनक्रीज करता पाया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इनक्रीज करता पाया तो मतलब की होंदी पई है ऑक्सीडेशन होंदी पई है। मतलब जिथे पॉजिटिव चार्ज इनक्रीज करेगा उत्थे ऑक्सीडेशन, जिहदी ऑक्सीडेशन होंदी उहनूं की कहने आपां एनोड कहने, की कहने आप एनोड। अदी की होंदी पई है रिडक्शन, की होंदी पई है सॉरी अदी की होंदी पई है पुत्र रिडक्शन होंदी पई, इस करके इनू की कहने आप फिर कैथोड कहने। हुण आप ट्रिक तो देखिया ही। दूसरी गल यही ओवरऑल रिएक्शन नाल सानू की गिवन है क्वेश्चन दे विच Ag पॉजिटिव तो लैके Ag की वैल्यू कितनी गिवन है सानू 0.80 वोल्ट गिवन है। वैल्यू कितनी गिवन है ई नोड दी वैल्यू गिवन है। नाल सानू वैल्यू कितनी गिवन है CD2 पॉजिटिव तो लैके CD तक कितनी वैल्यू गिवन है पुत्र -0.40। हुण ध्यान नाल समझना, हुण उन्हें क्या ओवरऑल सैल दी ई नोड फाइंड करो। ए तो वक्रे वक्रे सैल दी उन्हें क्या ओवरऑल जो आप दोवां नूं कंबाइन करांगे उहदे दौरान जो ई नोट आएगा उन्होंने फाइंड करके दिखाओ। हुण ध्यान नाल वेखियो, अगर आप इसनूं उपर वाली चीज़ ना कंपेयर करिए, देखो Ag जिथे की होंदी पई है रिडक्शन, इत्थे भी Ag की होंदी पई रिडक्शन होंदी पई। बट अगर आप अदी गल करिए इत्थे की उपर देखो अदे ऑक्सीडेशन हो रही है, की हो रही ऑक्सीडेशन। बट अगर आप यदि गल करिए इत्थे की हो रही है रिडक्शन हो रही है, की हो रही है रिडक्शन। जो भी इस तरह की चीज़ आ जाए उपर वाली चीज़ नाल जिहड़ी पर्टिकुलर सैल की रिएक्शन ना मैच करे उहदे साइन की कर लेने आप चेंज कर लेने। इनू आप इस तरह नहीं लिखना, फिर किस तरह लिखांगे, सब तो पहले इनू CD2 पॉजिटिव तो CD लिखांगे। हमेशा याद रखना उपर वाली रिएक्शन चैक करो, देखो जी उपर वाली रिएक्शन थल्ले वाली रिएक्शन मैच करती है। अगर मैच नहीं करती तो फिर तुसीं की करना उन्होंने वर्गी बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि Ag पॉजिटिव तो Ag जा रहा है इस करके एम मैच करती ही चेंज नहीं किया। बट अगर इस केस की गल करिए CD तो लैके CD2 पॉजिटिव तक जा रही है, इस करके यह CD2 पॉजिटिव तो लैके CD तक जा रही, जिदे करके दोवें मैच नहीं सी करदियां। इन्होंने मैच करने की किया, मैं CD पॉजिटिव नूं अदरले पासे लिख लिया तो उन्होंने उस साइड पर लिख लिया। जो उस साइड पर आप लिख लांगे मतलब रिएक्शन की चेंज की ओपोजिट डायरैक्शन मूव की। जो रिएक्शन ओपोजिट डायरैक्शन मूव करेगी जोड़ा तो साइन होएगा वो चेंज करना। अगर तो पॉजिटिव साइन है उन्होंने नैगेटिव कन्वर्ट कर देना, अगर नैगेटिव है तो पॉजिटिव कन्वर्ट कर देना। ठीक है, इतने नैगेटिव इस करके पॉजिटिव कन्वर्ट किया, क्योंकि साइन आप की करते इतने चेंज करते। नैक्सट आप देखिए उन्हें क्या ई नोट सैल फाइंड करना ओवरऑल सैल का की फॉर्मूला दस्सिया तुहानूं मैं ई नोट एनोड प्लस ई कैथोड। ई की गल करिए ई एनोड किन्ना साढ़े को, क्योंकि यदि की होंदी पई है पुत्र ऑक्सीडेशन 0.80, अदी की होंदी पई है रिडक्शन 0.40 0.80 प्लस 0.4 जो दोनों ऐड करोगे कितना आंसर आएगा 1.20 वोल्ट आंसर आएगा। ऐसा देखो कि आ गया ई नोट, इनू चंगी तरह समझ लियो क्योंकि ये नर्स्ट इक्वेशन के आप यूज़ करनी है इक्वेशनस। ठीक है, यह फॉर्मूला जो आप लिखिया है चंगी तरह तुसीं की कर लेना याद कर लेना। यह भी याद कर लेना आप उपर वाली रिएक्शन ना कंबाइन करके वेखना, मैच करके वेखना कि रिएक्शनस मिलदियाँ कि नहीं मिलदियाँ। अगर नहीं मिलदियाँ तुसीं साइन चेंज करने रिएक्शन उपर वाली रिएक्शन वर्गी बनाने दे लई, क्योंकि इत्थे देखो इत्थे रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही, बट जो आप सैल की पर्टिकुलर रिएक्शन देखी गिवन ही जी वो की होनी ही रिडक्शन हो रही सी। इत्थे ऑक्सीडेशन इत्थे रिडक्शन एवली वो वर्गी बनाने के लिए सानू की करना पाया, अदी भी सानू की करनी पई ऑक्सीडेशन करनी पई, मतलब साइन रिएक्शन ओपोजिट डायरैक्शन मूव कराया। अगर ओपोजिट डायरैक्शन मूव करावांगे तो नाल ही साइन की कर देंगे वो
ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਈ ਨੋਡ ਫਾइंड ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਦੋਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਦਾ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾइंड ਕਰ ਲਿਆ, ਈ ਨੋਡ ਫਾइंड ਕੀਤਾ। ਕੀ ਫਾइंड ਕੀਤਾ, ਈ ਨੋਡ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਨ ਐਫ ਈ ਨੋਟ ਸੈੱਲ, ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਈ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਈ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। देखो जो पूरे ਨੂੰ सोल्व करोगे ओवरऑल आंसर की आएगा, ए पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ओवरऑल आंसर की आएगा सारा नेगेटिव। मतलब डेल्टा जी ओवरऑल की आ गया, नेगेटिव च आ गया। अगर डेल्टा जी ओवरऑल नेगेटिव च आ गया, तो मतलब है जो अपनी इक्वेशन लिखी है वो प्रोसीड करेगी, मतलब सैल वर्क करेगा। अगर यह वैल्यू सपोज कर लो नेगेटिव च आ जाती, तो इतने फील करता मैं ए भी नैगेटिव तो ए भी नैगेटिव, ओवरऑल आंसर की चाहे पॉजिटिव का मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। थोड़ी चीज़ को थोड़ा याद रखना है ना, क्लीयर। उस तो बाद तुहाडे दिमाग च आ सकता क्वेश्चन, भाई एन का की मतलब है, एफ का की मतलब, एन नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, एन की है थे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स मतलब देखो इत्थे कितने इलैक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 इलैक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। मैनूं किस तरह पता लग्या इस रिएक्शन च 2 ही इलैक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, अभी ध्यान नाल देखते हैं। उस चीज़ थोड़ा समझने की कोशिश करियो, मैनूं किस तरह पता लग गया कि इस रिएक्शन के 2 इलैक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। देखो सब तो पहले रिएक्शन सानूं गिवन है ए जी, है गिवन है ए जी पॉजिटिव, तो ए जी बनया मतलब एक चार्ज ही वो भी की कर गया, 0 हो गया। कि एक इलैक्ट्रॉन अगर मैं ऐड करांगा तो ही तो चार्ज की होएगा, 0 होएगा। अगर आप इस रिएक्शन की गल करिए सी डी, तो CD2 पॉजिटिव बनया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा, मतलब 2 इलैक्ट्रॉन बाहर कटांगा तो ही तो की आएगा, तो 2 इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो ही तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। नैक्सट आप करना है ओवरऑल रिएक्शन किद्दां बनी है, रिएक्शन किस तरह बनी है देखते हैं। देखो इत्थे कितने इलैक्ट्रॉन्स है, 1 इलैक्ट्रॉन, इत्थे कितने 2। देखो गल नोट करनी है हमेशा, जिन्ने एक रिएक्शन च इलैक्ट्रॉन होने हैं उन्ने ही दूसरे च होने चाहिए। इस करके की करांगा, इनू 2 दे नाल मल्टीप्लाई करांगा। जो 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे की बनेगा, 2 इलैक्ट्रॉन 2 तो यह भी साढ़े को 2 बन गया। क्लीयर है ना। उस तो बाद आप लैफ्ट में लैफ्ट साइड से ऐड करना, राइट में राइट साइड से ऐड करें। जो ऐड करा दोवें आपस कट हो जाएंगे, तो साढ़े को बनया कि ए जी पॉजिटिव, CD2 पॉजिटिव प्लस 2 ए जी। देखो जी ए वाली रिएक्शन है, यह रिएक्शन वो वर्गी रिएक्शन हैगी है। समझ लगे चीज़, याद रखना हमेशा कि अगर ना पता लगे तो किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, सब तो पहले जिहड़ियां रिएक्शनस है इन्हों बैलेंस करने की कोशिश करो, अदे वर्गी बनाने की कोशिश करो, तो रिएक्शन अपने आप तुहाडी जिहड़ी है वो किदे वर्गी आ जाएगी, जिहड़ी ओवरऑल सानूं रिएक्शन सैल की गिवन हैगी है। अज दा टॉपिक जिहड़ा आई थिंक तुहानूं समझ लग गया होएगा। इंपोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप किसी कंपीटेटिव एग्जाम की गल करिए, उत्थे पूछा जाता है कि रिएक्शन दसो प्रोसीड करेगी या नहीं करेगी। उत्थे हमेशा याद रखना ई नोट सैल फाइंड करना है। अगर ई नोट सैल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, मतलब डेल्टा जी नैगेटिव होएगा, डेल्टा जी नैगेटिव मतलब सैल प्रोसीड करेगा, अदरवाइज सैल प्रोसीड नहीं करेगा। डेल्टा जी की वैल्यू की आती है, पॉजिटिव आती है। नैगेटिव आएगी प्रोसीड करेगा, पॉजिटिव आएगी प्रोसीड नहीं करेगा। सो इस लैक्चर में चंगी तरह एक बार वेख लियो, अदे बाकी नर्स की क्वेश्चन जी आप नैक्सट क्लास डिस्कस कर लाँगे, क्योंकि वो लिए टर्म समझनियाँ थोड़ियाँ जरूरी है। सो थैंक यू सो मच।